নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত গীতাশ্ৰী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ গোৱালপাৰাৰ কুমৰিত বাইক চুৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে কৰিছে গুলী চালনা কুমৰিৰ ঘটনা গোৱালপাৰাৰ বাইক চুৰি কৰিবলৈ লৈছিল বাইক চুৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰিছে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে জাকাৰী সিকদাৰ নামৰ বাইক চুৰটো গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে পুনৰ জনাইছো ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছে খবৰ গোৱালপাৰাৰ কুমৰিত আৰক্ষীয়ে গুলী চলাইছে বাইক চুৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী চালনা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে জাকাৰী সিকদাৰ নামৰ বাইক চুৰটো আৰু চুৰটো গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আৰক্ষীয়ে ভৰ্তি কৰোৱাইছে বিভিন্ন ঠাইত বাইক চুৰি ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আছে জাকাৰী সিকদাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে জাকাৰী সিকদাৰ আৰু এই বাইক চুৰটোৰ লগত আৰু কিমান ডাঙৰ এটা গ্যাং জড়িত হৈ থাকিব পাৰে এনেবোৰ বিষয় লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে সমান্তৰালকৈ চুৰটো গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসা দি থকা গৈছে গোৱালপাৰাৰ কুমৰিৰ ঘটনা কুমৰিত বাইক চুৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলী চলালে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে জাকাৰী সিকদাৰ নামৰ বাইক চুৰটো আৰু চুৰটো গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গোৱালপাৰাৰ আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো ৰিংকু বাইক চুৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলী চলাইছে কি হৈছিল আচলতে ঘটনা জনাওক হয় গিৰাশ্ৰী ক'ব লাগিব গোৱালপাৰা জিলাৰ যি কুমুৰিত বাইক চোৰক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ যি গুলী চালনাত এই জাকাৰী সিকদাৰ যি বাইক চোৰ তেখেতে ইতিমধ্যে আহত হৈছে আহত অৱস্থাত তেখেতক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে গীতাশ্ৰী ক'ব লাগিব চাকলেন মুস্তাক বুলি এজনে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে আৰু এই জাকাৰী সিকদাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে এটা পিষ্টল ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা বুলি আৰক্ষী জানিব দিছে ক'ব লাগিব এই বহু দিনৰ পৰা এই আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ইতিমধ্যে পলাই আছিল যি বাইক চুৰি জাকাৰী সিকদাৰ কিন্তু আজি আৰক্ষীক তেওঁলোকে যি 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে এখন বাহনেৰে জাকাৰী সিকদাৰ আৰু যি চাকলেন মুস্তাক আহি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰি পেলাই আৰক্ষীয়ে যি জাকাৰী সিকদাৰৰ গাড়ীখন পিছপিনে গৈ পেলাই যেতিয়া ৰখিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া এই জাকাৰী সিকদাৰক ইতিমধ্যে পলাবলৈ চেষ্টা কৰাত আৰক্ষী গুলী চালনা কৰাত ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল জাকাৰী সিকদাৰ ইতিমধ্যে তেখেতক উন্নত চিকিৎসালয়ত গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসাধীন কৰি থকা হৈছে আৰু চাকলেন মুস্তাক ইতিমধ্যে তেখেতক আটক কৰি পেলাই সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে যদি এতিয়ালৈকে কিন্তু যি আৰু কোনোবা ইয়াত জড়িত আছে নেকি কিন্তু আৰক্ষী এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো মুখ খোলা নাই গীতাশ্ৰী ক'ব লাগিব জাকাৰী সিকদাৰ কিন্তু বহুদিনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁ বাইক চোৰৰ লগত জড়িত আৰু তেওঁক বিচাৰ কৰি আছিল কিন্তু আজি তেখেতে আৰক্ষী জালত পৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হয় ৰিংকু আজি কিছুদিন পূৰ্বৰ ঘটনা মাত্ৰ য'ত দুধনৈ থানাৰ সন্মুখত তাত বাইকৰ দম লাগি আছিল বাইক চুৰি চক্ৰ কি ধৰণে মেঘালয়লৈ বাইকবোৰ নিছিল তাত নম্বৰ সলনি হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ পোহৰলৈ আহিছিল যিহেতু দুধনৈ গোৱালপাৰাত আৰক্ষী অভিযান চলাই বাইক চুৰৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতো অৰ্থাৎ গ্যাংবোৰে কাম কৰি আছে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যিজন অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গুলিয়াইছে আৰু লগতে যিজনক আটক কৰিছে তেনে কোনো গ্যাংৰে সদস্য নুই কৰিব নোৱাৰি কিয়নো কিছুদিন পূৰ্বে যি দুধনৈত যি আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফল বুলি ক'ব লাগিব কেইবাখনৰ যি বাইক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তাৰ পাছতো কিন্তু গীতাশ্ৰী দেখা গৈছে গোৱালপাৰাত বাইক চুৰকে ধৰি বা গাড়ী চুৰ ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে যদিও আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই বাইক চুৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থা লৈ আছিল কিন্তু এই জাকাৰী সিকদাৰ বুলি যিজন যি গভাত বাইক চুৰ ক'ব লাগিব গীতাশ্ৰী তেওঁলোকে বহুদিনৰ পৰা কিন্তু আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পেলাই তেওঁলোকে এই বাইক চুৰৰ কাম কৰি আছিল কিন্তু আজি আৰক্ষীৰ যি খবৰ লাভ কৰি পেলাই 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ইতিমধ্যে গৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষী খবৰ লাভ কৰি পেলাই তেওঁক পলাবলৈ চেষ্টা কৰে যি জাকাৰী সিকদাৰক সেই সময়তে কিন্তু আৰক্ষী গুলী চালনা কৰাত ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে হয় গীতাশ্ৰী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ শেহতীয়া এইখিনি খবৰ আপুনি জনালে ৰিংকু আৰু গোৱালপাৰাৰ এই ঘটনা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত বাইক চুৰ জাকাৰী সিকদাৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আন এজনকো ধৰিছে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ভিজুৱেলছ আমি এই মুহূৰ্তত কিছু আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পাৰিম গোৱালপাৰাৰ এই ঘটনাৰ কুমৰিত যি গুলী চালনাৰ ঘটনা ঘটিল আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰিবলগীয়া হ'ল চুৰলৈ লক্ষ্য কৰি ৰখাবলৈ আৰক্ষীয়ে বাহনখন যত্ন কৰিছিল আৰু এজনক মুস্তাক আৰু এজনক ধৰিছে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰি গৈছে
আৰু এজনৰ গুলি লাগিছে, সম্ভৱতঃ ভৰিত গুলি লাগিছে। গুলিত আহত হৈছে বাইক চুৰ। আৰু পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিম যে মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বৰ ঘটনা, যদি দৰ্শকৰ মনত আছে, দুধনৈ থানাৰ সন্মুখত বাইকৰ শ্বৰুম সদৃশ পৰিৱেশ এটা হৈ পৰিছিল, য'ত এখনৰ পিছত এখন বাইক আৰক্ষীয়ে এটা গেঙক উৎখাত কৰি এই যি বাইক চুৰৰ গেং উৎখাত কৰি আৰক্ষীয়ে বহুকেইখন বাইক উদ্ধাৰ কৰিছিল। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে বাইক চুৰৰ গেং এই গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত কাম কৰি আছে বা বাইক চুৰে এনে নিজৰ কামবোৰ কৰি গৈছে। আৰু তেনে বাইক চুৰ এজন জাকাৰি চিকদাৰ আৰক্ষীয়ে ৰখুৱাইছিল বাহনখন। জাকাৰি চিকদাৰ উলিয়াবলৈ বাধ্য হৈছিল, অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু আহত হৈছে বাইক চুৰ জাকাৰি চিকদাৰ। আহতজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰি বৰ্তমান গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে চিকিৎসকে। নিউজ 18 ইণ্ডিয়াৰ চপালত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। প্ৰতিটো বিষয়তে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ চাণক্যৰ দৰে উত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। बंद पूरा 700 अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल ये सब बनाने का मन में इरादा है। कितना संभव होगा नहीं होगा नहीं जानता हूं, लेकिन इरादा वही है कि हमारा मुसलमान भाई बहन मदरसा में ना जाए, उसका जगह में वो लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज को रोशन करे। मन में इरादा वो है। कितना कर पाऊंगा वो पता नहीं, 700 अभी तक हुआ है। तो मदरसे बंद हो जाएंगे तो विरोध, मतलब पूरा बैन मदरसे पूरा बंद। अभी स्कूल हो गया ना। अच्छा, जो 700 सरकार चलाता था मदरसा, कांग्रेस का जमाना। कोई वजह क्यों? तो अभी मैंने स्कूल कर दिया, लोग खुश है। मैंने बच्चा को तो पूछा, उसके रहते हुए भी मदरसे भी रहे, स्कूल भी रहे। नहीं पता नहीं आपका यह सजेशन है, लेकिन मैंने जब स्कूल में गया मैं लोगों को पूछा क्या बनना चाहते है बेटा? दादा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं बोला आप तो गलत जगह में आ गया, यहाँ तो आप डॉक्टर नहीं बनेगा, यहाँ तो आप मौलवी बनेगा। बोले ऐसा है क्या? क्या बनेंगे? बोले आप तो मदरसा अगर पढ़ेगा तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? तो बच्चा बोला क्या हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ? मैं बोला ना, ये स्कूल से तो नहीं बन सकते हो बेटा। क्या बनेंगे वहां से? तुमको किसने डाला? बोला मेरा पिताजी ने इसमें डाला। तो मैं बोला देखो ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तुमको जब डॉक्टर बनना चाहिए था तो तुम अभी मौलवी कैसे बन सकते हो? तो इसलिए मैंने वो स्कूल को नॉर्मल स्कूल तक कन्वर्ट कर दिया हूं। अभी लड़का लड़की डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा होगा ना। मदरसे बंद होंगे, मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बैन, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद, मियां वोट नहीं चाहिए, ये सब समझ रहे हैं ना? मैं अगर बोलो कि वोट दीजिए तो देगा। अच्छा, आपको मियां वोट नहीं चाहिए? अरे मैं बोला कि देखिए, मैं आपको बोला मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन मेरा पक्का मन में है कि आप मुझको प्यार नहीं करता है, तो मैं आपको क्यों बोलो जाके मैं आपको मदरसे बंद करेंगे तो कहां से प्यार करेंगे वो? अरे मदरसा तो मैं कौम का अच्छे के लिए बंद किया ना। ये तो कौम के लिए, तो मैं ये नहीं चाहता हूं मेरा नाम इतिहास में लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर कौम का कभी इतिहास बनता है तो लिखना चाहिए कि ये असम से मौलवी से ज्यादा मुसलमान समाज में डॉक्टर ज्यादा होता है, इंजीनियर ज्यादा होता है। अगर वो काम मैं 5 साल में कर सकता हूं तो उससे ज्यादा मुसलमान समाज तक कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? आप बताइए। तो मियां वोट नहीं चाहिए? देगा, आप खबर करिए। जो दिन वो लोग तैयार हो जाएगा तो मैं बोलूंगा वोट दीजिए। आप बोलेंगे चाहिए तो मिलेगा ना। ऐसा मैं आगे क्यों बोलो? इतना तो अक्ल होना चाहिए ना। मैं आगे बोलो फिर वो लोग नहीं देगा, तो दोनों समान होगा कोई दिन। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा के लिए नहीं चाहिए। जो बेटा बच्चा मदरसा का जगह नॉर्मल स्कूल में डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, ये लोग हमको जरूर वोट डालेगा। लेकिन फिलहाल वो सिचुएशन नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो मंदिर के 5 किलोमीटर में बीफ बैन, फिर मैंने आपसे पूछा था तो आप तो हर 5 किलोमीटर में मंदिर खुलवा देंगे। ये लोगों का हिस्सा है, कोई मंदिर खुले तो मैं जाके कैसे बंद कर सकता हूं?
तो हर 5 किलोमीटर मंदिर तो मतलब पूरे असम में ही बैन हो देखिए, जाएगा फिर। तकलीफ मंदिर हो उसमें तकलीफ नहीं है, तकलीफ होता है जब गोवध होता है। तो आप जब क्वेश्चन करता है, मेरा लगता है आपका मंदिर में तकलीफ है कि गोवध में तकलीफ है। हमको तकलीफ होना चाहिए गोवध में। अगर कई जगह में मंदिर खुले ना, हर घर में मंदिर होता है भारत में, उसमें आपत्ति क्या है? अगर मंदिर बनता है तो उनका 5 किलोमीटर रेडियस में बीफ ईटिंग और सेलिंग नहीं होगा, यह कानून है। बाकी मंदिर कोई बनाए, मैं कैसे मना कर सकता हूं? बांग्लादेश में जो बंगाली हिंदू हैं, दीदी उनको नहीं, वो तो भगा रही हैं, वो तो एनआरसी नहीं होने दे रही, तो असम में वेलकम करेंगे आप? दीदी का नहीं है, भाई का है ना ये मन। आप अगर दीदी का बात सुनता है तो भाई का भी बात सुन लीजिए। तो दीदी की दादागिरी वहां चल रही है, वो आने नहीं दे रही। तो देखिए, घर में दीदी एट द एंड ऑफ द डे भाई का ही बात मानना पड़ता है। ऐसा दुनिया में अब कोई दीदी नहीं मिलेगा जो अपना छोटा भाई का बात नहीं मानेगा। आप पूछ के, आपका घर में भी होगा, राखी पहनने का दिन आपको मालूम होता है। जी जी जी। तो दीदी को भाई का बात मानना पड़ता है, भाई का बात थोड़े दीदी मानते हैं। लेकिन सीए तो लागू नहीं हो पा रहा ना। दीदी का बात मैक्सिमम भाई नहीं मानता है, भारत में भाई का बात ही दीदी को मानना पड़ता है। आप सीए के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो बांग्लादेश के बंगाली हिंदू, उनको असम की नागरिकता मिले, वो असम में आकर बसे, आप तैयार हैं? देखिए, मैं बांग्लादेश का ऊपर कमेंट करना नहीं चाहूँगा, इसलिए ये मेरा पड़ोसी देश है। लेकिन अफगानिस्तान में जो हुआ, वो सिचुएशन देखने का बाद लोगों का मन में ये कोई संदेह नहीं रहना चाहिए क्यों मोदी सरकार ने सीए लाया था। भारत हिंदू का एक सिविलाइजेशन था और भारत एक हिंदू का सिविलाइजेशन रहेगा। सो दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू का तकलीफ हो, वो लोग को भारत लौट के आने का अधिकार होना चाहिए, जहां भी हिंदू का तकलीफ हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई तकलीफ होने से भारत का मुस्लिम अगर अमेरिका में है उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन भारत एक हिंदू सभ्यता था, भारत एक हिंदू सभ्यता रहेगा। तो अगर कोई जगह में हिंदू का तकलीफ होता है, रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, तो उनको अपना मातृभूमि में लौट के आने का अधिकार होना चाहिए। इसी पर तो दर्द है कि धर्म के आधार पर क्यों भाई? धर्म का आधार में ही तो है दुनिया। हम लोग 5000 साल पहले से तो ये धर्म का आधार ही तो भारत हुआ करता था। नहीं, नागरिकता धर्म के आधार पर क्यों? नागरिकता, सबसे बड़ा विरोध यही है ना। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में अहमदिया, अफगानिस्तान से कितने मुसलमान भाई लटके हुए। देखिए, अगर मेरा ये मातृभूमि है, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली हर हिंदू का मातृभूमि भारत है। भारत से ही तो सभ्यता जन्म हुआ था ना, अनलेस यू हैव गॉट कन्वर्टेड इन अमेरिका फ्रॉम सम अदर रिलीजन टू हिंदू। तो हर हिंदू का जो रूट है वो भारत में बसा हुआ है, हिंदुस्तानी की है ना, हिंदू का है, हिंदू का। इट वाज ए हिंदू सिविलाइजेशन। यहां में वेद होता था, यहां में उपनिषद होता था। हिंदू, हर हिंदू का जो रूट है वो भारत से जुड़ा हुआ है। तो मेरा जहां भी तकलीफ होगा, मेरा पास इतना अधिकार होना चाहिए भारत में लौट के आने का। इतना अधिकार तो मेरा इनबिल्ड है, इनहेरेंट अधिकार है मेरा। लेकिन कहते भारत तो सबका है भाई, कानून सिर्फ तो हिंदुओं का थोड़ी ना, भारत तो भारतीयों का है ना। मैं मना किया हूं कि दूसरे लोगों को आने में। हाँ, अगर नहीं, कोई अगर मुसलमान भाई भी आना चाहते, भारत में एप्लीकेशन डाले, भारत सरकार विचार विमर्श करेगा, आना है तो आएगा, वो अलग बात है, सीए रूट से नहीं। लेकिन हिंदू, इट इज अ नेचुरल राइट्स ऑफ हिंदूज टू कम बैक टू इंडिया। जैसे एक आज आप अगर हिंदू कहा जाएगा नहीं तो किसलिए? पूरा दुनिया में तो एक ही देश है। और ये जो सेकुलर वाला जो बात आया, ये 1947 से आया, लेकिन इसका पहले हम लोग क्या था? ये तो एक पूरा 5-6 हजार साल से ये हिंदू का देश रहा है और हिंदू का देश ये रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां में मुसलमान नहीं रहेगा, लेकिन प्राइमेसी और जो भी है,
हिंदू का एक इनबिल्ट अधिकार है ये देश में, किसलिए ये देश में से ही हिंदू आज दुनिया में गया था। नहीं, पता है तकलीफ हुआ तो यहाँ आएगा। ममता जी, हिंदू का देश है, हिंदुस्तानियों का देश। देखिए, आपका मन में वो अंतर है, मेरा मन में वो अंतर नहीं है। तो मेरा मन में क्या हिंदुस्तानियों अंतर? का देश, मतलब आप क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं? तो हिंदुस्तानी हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। देखिए, ये वर्ड तो 1947 में आ गया। बात ऐसा है कि हर हिंदुस्तानी हिंदू भी था, हर हिंदू हिंदुस्तानी भी है, उसमें अंतर कहां है? मुझको तो अंतर दिखाई नहीं देता है। तो यहां बाबर आने का पहले सब तो हिंदू ही था, तो फिर कोई अलग था क्या? तो फिर सबको ले लीजिए, फिर धर्म मैं आधारित तो क्यों? लेने के लिए तैयार हूं, अगर भारत को मातृभूमि मानते हैं और भारत का सिविलाइजेशन को अपने आप को स्वीकार करता है। आप भारत में आइए, पैकेज का साथ मत आइए। आप भारत का पैकेज को लीजिए, लेकिन आप भारत में आके कोई दूसरा पैकेज को यहां थोपना चाहेगा, तब तो आप हिंदुस्तानी नहीं हुआ ना। उत्तर प्रदेश को लेकर यूपी में आरोप लगता है कि आप लोग, अभी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि काशी जारी है, मथुरा की अगली बारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगली कार सेवा होगी तो फूलों की बारिश होगी। आप लोग कम्युनल बना देते, जिन्नावादी, राजवादी। देखिए, काशी, मथुरा। आपका मन में वो क्यों है? अगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अगर उसमें कोई मंदिर का बात बोलता है तो उसमें आपको कम्युनल क्यों लगता है? मेरा तो यही दिमाग में पढ़ के मैं पागल हो जाता हूं कि भाई मंदिर का बात बोलने से आपको कम्युनल लगता है, लेकिन अगर आप बोलेगा मैं इधर वो दूसरा एक रिलीजियन का कुछ बनाऊंगा, आपको सेकुलर सर्टिफिकेट हो जाता है। जो सेकुलर सर्टिफिकेट लेने का जो भोग है, वो भोग से हम लोग को बाहर निकालना चाहिए, तब भी भारत जाके सेकुलर कंट्री बनेगा। हमको क्यों सेकुलर का सर्टिफिकेट चाहिए? हम सीधा सीधी हम हिंदू है, हिंदू रहेगा, और एक हिंदू ही सबसे ज्यादा दूसरा धर्म को सम्मान करने जानते हैं। एज ए हिंदू वी आर मोर सेकुलर देन द अदर मीनिंग ऑफ सेकुलर। अगर हिंदू है ठीक सर, तो मैं परमात्मा का सारा आत्मा एक ही संतान है। तो मेरा जो नजर है देखने का, ये बहुत ब्रॉड बेस है। तो इसीलिए यूपी में बहुत जो भी पुराना मेरा मंदिर था वो मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर बनने का तरीका क्या है, कैसे बने, वो एक अलग विषय है। मेरा मालूम भी नहीं है, मेरा ज्यादा जानकारी भी नहीं है उत्तर प्रदेश का राजनीति में। हिंदू ही सेकुलर और हिंदुत्व ही सेकुलर। हिंदू ही सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा गारंटी है। जो प्रदेश में हिंदू है वहां में मुसलमान शांति से रहता है, और जहां हिंदू माइनॉरिटी है वो जगह में डिक्टेटरशिप होता है। और वही आप पूरा एग्जाम्पल देके देखिए। मतलब हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही सेकुलरिज्म की